To start with, let's start the topic of corporate governance, and through this session I would tell you कि किस तरीके से आपको पढ़ना है इस एग्जामिनेशन के लिए, इस पेपर के लिए. तो what do you understand by governance? Before learning into going into corporate governance, you should know what do you understand by governance. Basically governance मतलब क्या? It is the process of decision making and the process of implementing that decision. इसको क्या बोलते हैं हम? Governance बोलते हैं. And when this governance is applied in the private sector, in the government sector, along with the ethical values, it has two perspectives. When governance, जो भी decision हो रहा है और implementation हो रहा है, is with good values, taking into consideration the good values, then that would be considered as good governance if it is applied in the public sphere or in government offices. But in the private sphere, in the corporation, in the various corporates, in the companies, if this same governance is applied with good values, values हम बाद में देखेंगे, but with good values, it would be known as corporate governance, ethical corporate governance. तो एक basic difference आपको with respect to governance का meaning क्या है, good governance का meaning क्या है, and corporate governance का meaning क्या है. जब हम good governance की बात करते हैं, the ultimate aim of good governance is social development and welfare of all the people, right? So good governance का ultimate aim of any public organization is what? The ultimate aim is welfare of all the public, वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स, बिकॉज पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व. तो ये आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज, जब भी हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये आपको पता चाहिए यहाँ किसका वेलफेयर देखेंगे हम स्टेक होल्डर्स का वेलफेयर देखेंगे. तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस? तो ये एक बेसिक डेफिनेशन आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पता चाहिए. कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी बेस्ड on values and principles that protects the interest of all the stakeholders. तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता चाहिए बिटवीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस. कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम क्या कर रहे हैं? स्टेक होल्डर अप्रोच लेके आ रहे हैं. बिफोर गोइंग इनटू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आपको पता चाहिए पहले कैसा अप्रोच था विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस. पहले द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स वॉज ओनली प्रोटेक्टेड. शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट सिर्फ देखा जाता था कि शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है. बट नाउ द कॉन्सेप्ट हैज चेंज फ्रॉम शेयर होल्डर्स टू शेयर होल्डर्स टू स्टेक होल्डर्स. तो ये आपको पता चाहिए. स्टेक होल्डर्स अभी अप्रोच है. स्टेक होल्डर्स एंड हु आर द स्टेक होल्डर्स? तो जो भी कंपनी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन है ये आपको पता चाहिए. जब तक आपको ये होलिस्टिक आइडिया नहीं है, यू कैन नॉट स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो हु आर द स्टेक होल्डर्स? पहले ऐसा माना जाता था कि जो ओनर्स है, दोज आर द what do you say, only stakeholders. Now the concept has changed from shareholders to stakeholders. तो stakeholders in any company, तो एक तो है कि shareholders are one of the stakeholders. Next, consumers are also one of the important stakeholder because they are paying for the services. Government is also one of the stakeholders because the company is paying taxes to the government. Environment is also one of the important stakeholder. तो एक important चीज पता चाहिए. Then society, जहां वो एक company based है, those are also stakeholders. तो ये एक important approach पता चाहिए. The concept has moved from shareholders to stakeholder approach. तो अभी corporate governance का main ultimate aim is welfare of all the people, जो भी stakeholders है. तो हमने stakeholders देख लिया. नेक्स्ट इज, जब भी हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें, दो तीन कॉन्सेप्ट आपको हमेशा पता चाहिए विद रिस्पेक्ट टू गांधी जी सिन. आपको पता चाहिए कॉमर्स विदाउट मोरालिटी इज अ सिन. तो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रनिंग अ कंपनी विदाउट मोरालिटी इज अ सिन विच इज सेड बाय गांधी जी. एंड ट्रस्टीशिप मॉडल ऑफ गांधी जी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वेयर ही सेड कि जो भी रिसोर्सेस है ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, दीज आर बेसिकली रिसोर्सेस ऑफ द पब्लिक एंड जस्ट द प्राइवेट कंपनी इज मैनेजिंग दोज रिसोर्सेस. तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ट्रस्टीशिप. नेक्स्ट इज, नारायण मूर्ति ने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था कि कंपैशनेट कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म चाहिए, बिजनेस करो, लेकिन विद द आइडिया ऑफ कंपैशन. देयर शुड बी कंपैशन एट द हार्ट ऑफ in the heart of the business. तो ये आपको पता चाहिए. जब भी आप टाटा ग्रुप की बात करते हैं, टाटा ग्रुप, it runs Tata Cancer Hospital. It has given huge amount of donations during this COVID times. It has helped so many people. That is a concept of compassionate capitalism. Infosys does not only work in the IT sector, but it also gives science prizes to promote scientists. So that is also one of the important ways to give back to the society. In Companies Act 2013, there was a concept of CSR. तो ये हम आगे जाके देखेंगे कि CSR is also one of the important component of corporate governance, where we are focusing not just on the benefit of the shareholders but all the stakeholders. तो ये एक important concept आपको पता चाहिए.
As I said कि who are the stakeholders in this diagram, I have told you all the stakeholders. एक तो है competitors are also one of the important stakeholders, employees, creditors, shareholders, customers हो गया, society हो गया, government हो गया and environment हो, all these are stakeholders in any company. So they should be kept at the center while taking any decision, and the welfare of all the people are to be ensured whenever we are taking any any important concept with respect to कॉर्पोरेट गवर्नेंस. मूविंग फॉरवर्ड, जब भी हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो यू शुड ऑल्सो नो कि वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज इंपॉर्टेंट. तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता चाहिए कि वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज इंपॉर्टेंट. थिंक फॉर 2 minutes, राइट डाउन इन योर पेन एंड पेपर. आई वुड नॉट, डू नॉट राइट इन द चैट बॉक्स, बट थिंक, give stress ki why corporate governance is important, why corporate governance is. Now you know the stakeholders, now you tell me why corporate governance is important. इस सेशन का एम ये है कि to put a pressure on you so that you generate points. So make sure you think. I've given you an idea कि why corporate governance is important. I've given you an idea who are the stakeholders, but you tell me why corporate governance is important and who are the stakeholders मैंने देखा है. तो think from that perspective, why corporate governance is important, why corporate governance is important. So make sure you think from that perspective why corporate governance is important. I would also like to tell you we are uploading all the diagrams on our Telegram group. The link is in the description box. तो वहाँ भी आगे जाके आप देख सकते हो all the diagrams with respect to, हम daily diagrams upload कर रहे हैं on every topic. So think for a second why corporate governance is important. This is the third session for our RM batch students, so make sure you continue in your notes. आप इसमें continue कीजिए. So one of the important points why corporate governance is important, अगर if we keep corporate governance at the center when you are doing business, तो एक होगा कि trust and confidence in the business community would increase. तो trust and confidence बढ़ेगा ऑफ द कस्टमर इन द कंपनी. तो ये आपको पता चाहिए. अगर कंपनी इफ इट्स वर्किंग इथिकली, इफ इट्स फॉलोइंग ऑल द प्रिंसिपल्स प्रॉपरली, तो इफेक्टिवली क्या होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द कॉर्पोरेशन, इन द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वुड डेफिनेटली इंक्रीज. नेक्स्ट इज, वुड इट रिड्यूस ऑल द फ्रॉड्स, वुड इट रिड्यूस ऑल द फ्रॉड्स? डेफिनेटली इट वुड रिड्यूस ऑल द फ्रॉड्स. तो ये आपको पता चाहिए. जो हम सत्यम स्कैम देखते हैं, दैट इज which happened a few years back, या DHFL जो अभी crisis है, it's all because what we have is we had various frauds running into this private sector because of lack of corporate governance. They took certain funds out of their balance sheet. They did not show adequate information in the balance sheet, and that is the reason why we have फ्रॉड्स इन द कॉर्पोरेट, वाई वी हैव फ्रॉड्स. तो अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फुल्ली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वी वुड हैव डिक्रीज फ्रॉड्स. तो ये आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज, what is the other benefits? If the company is acting in ethical way, definitely it would protect the environment, and it is an important component for ensuring sustainable development. Would protect environment, definitely it would protect environment. Next is, if any company is paying all the taxes, it's following all the legal provisions, if it's following all the statutory provisions, तो आपको पता चाहिए कि effectively the taxes would rise. There is lot of tax evasion by companies because they are not following all the ethical corporate governance principles. They are not following the principle of transparency. They are not following principles of accountability. So definitely if company follows all the ethical corporate governance, the taxes would increase, and जब taxes बढ़ते हैं तो quality of service delivery would increase. हमने लास्ट लेक्चर जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो था, वेयर वी सॉ कि व्हाई टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली इट वुड इंक्रीज क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी. तो जब कॉर्पोरेट्स वुड फॉलो ऑल द इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली टैक्सेस बढ़ेंगे, द रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट वुड इंक्रीज. तो ये आपको पता चाहिए. वुड इट मोटिवेट एम्प्लॉइज? डेफिनेटली इट वुड मोटिवेट एम्प्लॉइज, बिकॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वैल्यू इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एंश्योरिंग गुड वर्क कल्चर. हम आगे देखेंगे कि कौन से वैल्यूज एक कंपनी ने फॉलो करने चाहिए. तो डेफिनेटली जब वर्क कल्चर अच्छा होगा, जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा, तो वर्क कल्चर अच्छा होगा इन द कंपनी. एंड इफ वर्क कल्चर इज गुड, द इफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज इंक्रीजेस, हिज सेटिस्फैक्शन इंक्रीजेस. तो ये आपको इंपॉर्टेंट पता चाहिए. नेक्स्ट इज, जब भी वर्क कल्चर, जब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो किया जाएगा, तब क्या होगा, वन इंपॉर्टेंट थिंग होगा, देयर वुड बी प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स. तो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स का भी प्रोटेक्शन होगा. इफ अ कंपनी, अभी जो स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है कि जो रेगुलरली आप और मैं जो स्टॉक्स खरीदते हैं, उससे क्या होगा, वी आर माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स.
वी आर बाइंग शेयर्स, लेकिन हमारा प्रोटेक्शन हो रहा है क्या? इफेक्टिवली नहीं हो रहा है। उसी के लिए सेबी बनी थी। लेकिन क्या हो रहा है, जो इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से हु आर द मेन जो अफेक्ट हो रहा है, वो हम जैसे माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स अफेक्ट हो रहे हैं। इफ अ कंपनी फॉलोज ऑल द कॉर्पोरेट गवर्नेंस वैल्यूज, ऑल द लीगल प्रोविजंस, ऑल द लीगल स्ट्रक्चर्स, तो डेफिनेटली हु वुड बी प्रोटेक्टेड? वी वुड बी प्रोटेक्टेड। तो ये आपको पता चाहिए। वेन एवर द कंपनी फॉलोज कॉर्पोरेट एथिकल गवर्नेंस एंड इट वर्क्स फॉर द सोसाइटी थ्रू CSR, अगर CSR के थ्रू वो काम करता है तो डेफिनेटली क्या होगा? इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए जब भी हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं। तो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्या होगा? अगर कोई कंपनी, इफ अ प्राइवेट सेक्टर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इफ इट्स फॉलोइंग ऑल द लीगल प्रोविजंस, डेफिनेटली ट्रस्ट बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ट्रस्ट कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? फंडिंग आएगी, फंडिंग आएगी, एंड फंडिंग आई तो क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। अगर इमेजिन इफ यू हैव सो मेनी फ्रॉड्स इन अ कंट्री, डेफिनेटली द प्राइवेट इन्वेस्टर वुड थिंक 2 times बिफोर इन्वेस्टिंग इन प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज देयर सो मेनी फ्रॉड्स, दे आर नॉट फॉलोइंग ऑल द एथिकल पर्सपेक्टिव। आपको साइड बाय साइड वोक्सवैगन का केस पता चाहिए। वोक्सवैगन का केस क्या था कि वेयर दे फज their data, their pollution data, their emission data, and this led to lot of pollution. So that in example, अगर कोई corporate governance या स्टरलाइट प्लांट हो गया which led to lot of pollution, ये 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। नेगेटिव पर्सपेक्टिव से सत्यम स्कैम लिख सकते हो, येस बैंक स्कैम लिखते हो, DHFL स्कैम लिख सकते हो। तो ये सब हम एग्जाम्पल देखेंगे। लेकिन आपको पता है जब कोई कंपनी एनवायरमेंटल नॉर्म्स नहीं फॉलो करता है, इट डज नॉट शो द रियल डेटा, इट अफेक्ट्स द एनवायरमेंट, इट डज नॉट टेक इनटू कंसिडर एनवायरमेंट एज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, डेफिनेटली it leads to what? It leads to loss of the environment economy, and it damages environment. तो ये आपको पता चाहिए। Hopefully you have got enough points and you've gotten enough idea कि किस तरीके से आपको सोचना है, किस तरीके से पॉइंट जनरेट करना है। डेफिनेटली आप वेरियस पर्सपेक्टिव से आप देखिए। अब एनपीए का रीजन भी मैं बोलता हूँ, इट्स वन ऑफ द रीजन फॉर एनपीए ऑफ यस बैंक्स इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो मेक श्योर आप सिर्फ कॉर्पोरेट गवर्नेंस टॉपिक आया तो ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में मत लिखिए, लेकिन आप रिवर्स इंजीनियरिंग वे में भी लिखिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप कहाँ कहाँ एंश्योर कर सकते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हो। वन ऑफ द एरियाज वेर यू कैन यूज इज एनपीएस के, यहाँ भी आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टॉपिक आप ला सकते हैं कि वाई वी हैव इश्यूज विथ रिस्पेक्ट टू NPS is poor financial management by the banks. So that is also one of the reasons. Yes Bank one of the reasons why Yes Bank did not follow all the policies and perspectives is because of failure of corporate governance. तो ये आपको important चीज़ पता चाहिए। Next is जब भी हम corporate governance की बात करते हैं तो you should know about certain values which a company should protect while doing business। तो कौन से वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, कौन से वैल्यूज इंपॉर्टेंट है जब भी कंपनी काम करती है। तो मेक श्योर यू थिंक कि कौन से वैल्यूज इंपॉर्टेंट है फॉर अ कंपनी। दे शुड थिंक वाइल फंक्शनिंग, वाइल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। तो थिंक फॉर 5 मिनट्स कौन से वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। टू गिव यू एन हिंट कि मैं कुछ आइडियाज बताता हूँ कि कौन से वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है क्या? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है फॉर अ कंपनी वाइल इट्स फंक्शनिंग। इट शुड मेन इफेक्टिव, इट शुड एंश्योर दैट देयर इज इफेक्टिव ट्रांसपेरेंसी। और कौन से वैल्यूज है? थिंक फॉर 2 मिनट्स। थिंक फॉर 2 मिनट्स। कौन से वैल्यूज है, कौन से वैल्यूज प्रोटेक्ट करने चाहिए, कौन से वैल्यूज पर आपका डिसीजन बेस चाहिए इफ यू वांट टू कंटिन्यू, इफ यू वांट टू एंश्योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। थिंक फॉर अ मिनट, गिव योरसेल्फ। अब मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, तो मेक श्योर। ठीक है। टू कंटिन्यू विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको हमेशा एक चीज पता चाहिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में 2 मेजर पिलर है इफ यू वांट टू एंश्योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन एनी कंपनी। फर्स्ट इज देयर शुड बी अ प्रॉपर स्ट्रक्चर इन द कंपनी, जो हम आगे देखेंगे, एंड इट शुड फॉलो सर्टेन वैल्यूज। तो ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन वैल्यूज जो जैसे मैंने बताया कि अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना है किसी कंपनी को, इट शुड हैव अ प्रॉपर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर मतलब क्या? इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स चाहिए, विमेन रिप्रेजेंटेशन चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी चाहिए, डेफिनेटली जो ऑडिट कमिटी है वो इंडिपेंडेंट चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए,
जो देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ MD एंड CEO, देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एंड MD एंड CEO। तो ये एक स्ट्रक्चरल वैल्यूज, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कि इस तरीके से कंपनी का स्ट्रक्चर चाहिए। बट वैल्यू बेस में कौन से वैल्यूज है? फर्स्ट इज ट्रस्टीशिप का वैल्यू उन्होंने इंश्योर करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी टू द कस्टमर्स ऑल्सो, टू द गवर्नमेंट ऑल्सो, टू द एनवायरमेंट ऑल्सो, ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, दे शुड मेक श्योर दैट दे पे एडिक्वेट टैक्सेस एंड राइट टैक्सेस, जो भी उनका कंप्लायंस है, दे डू नॉट इन्वॉल्व देमसेल्फ इन टैक्स इवेजन। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स, ensuring fair competition and ensuring good work culture। तो एक इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जो हर एक कंपनी ने फॉलो करनी चाहिए। तो दीज वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू नो अबाउट दीज वैल्यूज व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो यू विल फाइंड एवरीथिंग ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, विल शेयर दिस ऑल्सो। टू सम अप आपको ये पता चाहिए कि एक इंपॉर्टेंट डायग्राम हमेशा मैं बोलता हूँ कि बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है। देयर शुड बी कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ द एवरीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आपको पता चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज प्रेजेंटली व्हाट आर द इश्यूज विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। व्हाट आर द इश्यूज? तो ये आपको पता चाहिए व्हाट आर द इश्यूज प्रेजेंटली वी आर फेसिंग विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। कौन से इश्यूज है? तो थिंक कौन से इश्यूज है। हमने देख लिया कि वाई इट इज इंपॉर्टेंट, कौन से वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, हमने डायग्राम देख लिया, हमने एग्जाम्पल्स देख लिया, लेकिन थिंक वाई, व्हाट आर द इश्यूज प्रेजेंटली, जो मेजर इश्यूज चल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिया। व्हाट आर द इश्यूज वी आर फेसिंग, कौन से इश्यूज फेस कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चाहिए जब भी हम इश्यूज की बात करते हैं। think for a minute, give yourself a little time, जब तक एग्जाम में आप सोचते नहीं हो। टू गिव यू इनसाइट, मेंस एग्जामिनेशन में क्या होता है, मेरे एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ कि या सबके एग्जाम्पल्स, हर एक टॉपर्स, आप कितना भी पढ़ के जाओ, 20 क्वेश्चन में से अराउंड 10 to 11 क्वेश्चन ही आपको जो आपने पढ़ा है डायरेक्टली उसी से रिलेट होंगे आएंगे। ये आपका अगर बहुत अच्छा है, आपका प्रेडिक्शन है या आपने लक आपका बहुत सारा साथ दे रहा है, तो 10 to 11 ही क्वेश्चन आएंगे। रेस्ट 9 to 10 क्वेश्चंस आपको क्या करना है, ऑन द स्पॉट आंसर्स बनाने हैं, ऑन द स्पॉट आंसर्स बनाने हैं। और इसमें क्या काम आएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग काम आएगा, इसमें भी काम आएगा, लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आपकी सोचने की जो प्रोसेस है इट्स फास्ट, यू आर एबल टू जनरेट करेक्ट पॉइंट्स टू द पॉइंट्स, तब तक आप 20 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो मेजर प्रॉब्लम क्या आता है, 9 to 10 क्वेश्चंस में आप क्या करते हो, यू टेक 15 to 20 मिनट्स टू राइट ईच आंसर्स, बिकॉज आपने पहले प्रैक्टिस ही नहीं की है सोचने की, आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की है सोचने की। तो मेक श्योर आप सोचने की ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर्स पर मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो डाला है विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग इज नॉट व्हाट यू से रॉकेट साइंस। आपको क्या डिसाइफर करना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पॉइंट्स लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डिसाइफरिंग ऑफ क्वेश्चन आ गया तो पॉइंट्स जनरेट करना उससे बड़ा चैलेंज है। अगर आप मल्टी होलिस्टिकली सोच नहीं सकते, हम वन ऑफ द रीजंस, अगर पोल्यूशन की बात किया जाए तो वन ऑफ द रीजंस आप लिख सकते हैं कि फेलियर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस in manufacturing sector to in dealing with ensuring environmental sustainability is also one of the reasons for pollution. So it would give a multiple different dimensions to the answer. तो आपको ethics कैसे जोड़ना है, that is also covered in our ethics batch which we launched. The details description box में है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है। इस तरीके से हमने पूरा टॉपिक, सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, ज़्यादा आंसर लिखना इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रोज 30 to 40 मिनट्स ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। हाउ डू यू स्ट्रक्चर योर आंसर्स, क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे, कितने फास्ट आ सकते हैं, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है इन मेंस आंसर राइटिंग। एंड जब तक आपने सोचा नहीं है, एंड सोचने इज सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी, ऑन द स्पॉट पॉइंट जनरेट करना सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। Next is what are the issues? First issue which in the field of corporate governance जो India face कर रही है is with respect to conflict of interest, where the managers, the CEOs, they are also there is a conflict between their public interest or the interest of the company and their private interest. They are not able to differentiate between company's interest and private interest. They are running the business as
which is in a way which is profitable for them and not for the stakeholders. You should run a business which in a way which is profitable for all the stakeholders. You are ensuring welfare of the all stakeholders. लेकिन conflict of interest हो रहा है where you are protecting your private interest. चंदा कोचर case you can write, चंदा कोचर case, चंदा कोचर वोडाफोन केस जो आपको पता ही है, where there was a issue with respect to conflict of interest. Next is various unethical practices. Volkswagen का केस हो गया, then with respect to सत्यम स्कैंडल हो गया, DHFL स्कैंडल हो गया. Unethical practices में मतलब you are not following the legal guidelines, you are not ensuring sustainable, you are not ensuring what you are not ensuring is ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन योर फंक्शनिंग. तो ये आपको पता चाहिए. थर्ड इंपॉर्टेंट इशू इज इनइफेक्टिवनेस ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, एवरी बोर्ड हैज टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड दीज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का मेन रोल है कि जो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स है उनका प्रोटेक्शन. दे हैव टू सी वेदर द कंपनी इज रनिंग इफेक्टिवली, आर दे फॉलोइंग ऑल द रूल्स, दे आर नॉट टेकिंग एनी अनएथिकल प्रैक्टिसेस. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का फंक्शनिंग इनइफेक्टिव है इंडिया में. नेक्स्ट इज अनदर इशू इज विथ रिस्पेक्ट टू concentration of power in few directors, concentration of powers with respect to running the company in the hands of few directors, and that also leads to conflict of interest. तो concentration of power है, तो ये आपको पता चाहिए. Insider trading है. Recently if you have seen Infosys case, तो insider trading is also one of the important issues where the critical information is shared to few and they are taking advantage at the stock market. तो ये आपको पता चाहिए. Executive compensation एक also important issue है. Executive compensation मतलब जो ओनर है, जो CEO, जो मैनेजर है, उनका सैलरी बहुत ज़्यादा होता है एंड इट टेक्स अवे ऑल द प्रॉफिट्स. अगर प्रॉफिट्स उसमें ही चले गए तो क्या होगा, डिविडेंड्स सबको कम मिलेगा. तो ये फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज है विच विथ रिस्पेक्ट टू रनिंग अ कंपनी. देयर इज नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप मैनेजमेंट एंड ओनरशिप एंड मैनेजमेंट में सेपरेशन नहीं है. दोज हु आर ओनर्स आर रनिंग द कंपनी. लेकिन आइडियल सिचुएशन में ऐसा नहीं चाहिए. मैनेजर शुड बी ए स्पेशलाइज इंडिपेंडेंट फुल टाइम वर्कर एंड देयर शुड बी कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड ओनर्स. नेक्स्ट इज देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन MD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO. तो अभी बैंकिंग सेक्टर्स में आफ्टर इंद्रधनुष मिशन देयर वाज अ सेपरेशन बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO. तो ये एक इंपॉर्टेंट नहीं होता था. मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो भी प्राइवेट जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है, स्टिल दे आर रन एज अ फैमिली ओन बिजनेस. दे आर स्टिल रन एज फैमिली ओन बिजनेस. जैसे आप रिलायंस का एग्जाम्पल देखो, who heads the Jio का part is run by the members of Ambani family, though they are not the experts in it. But Reliance, though it is a public listed company, it has been run as a private listed company. It has been run as a family run business because there is no separation between ownership and management. तो एक important topic आपको पता चाहिए with respect to, ये सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज आपको पता चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो ये आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज व्हाट स्टेप्स गवर्नमेंट हैज टेकन विथ रिस्पेक्ट टू इंश्योरिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस. कौन से स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने. एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है, एक इंपॉर्टेंट स्टेप कंपनीज एक्ट में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 135 आई गेस, वेयर CSR was introduced, where independent directors were introduced. 1/3 मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लेके आए एंड वेयर देयर वाज मोर फोकस ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिट कमेटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर्स. उस पर ज़्यादा फोकस किया है. तो एक इंपॉर्टेंट कंपनीज एक्ट है. लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट जो रिसेंट अपडेट था वाज विथ रिस्पेक्ट टू उदय कोटक कमेटी. उदय कोटक कमेटी के रिकमेंडेशन रिसेंटली सेबी ने एक्सेप्ट किए हैं. सो व्हाट आर द रिकमेंडेशन ऑफ उदय कोटक कमेटी एंड व्हाट स्टेप ही हैज़ गिवन. तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता चाहिए कि क्या उसने रिकमेंडेशंस दिए हैं. तो ये कुछ रिकमेंडेशंस राइट डाउन अगर आपके पास ये है. उसने बोला है कि मिनिमम सिक्स क्या चाहिए, मिनिमम 6 डायरेक्टर चाहिए. उसमें से हाफ क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए. मिनिमम 1 वुमेन डायरेक्टर चाहिए. देन ही सेड देयर शुड बी कैप ऑन रेम्यूनरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स. जो भी है उनका एक कैप चाहिए. देयर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी. ही सेड देयर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी. रिस्क मैनेजमेंट कमिटी चाहिए फॉर एंश्योरिंग दैट देयर इज इफेक्टिव साइबर सिक्योरिटी. तो रिस्क मैनेजमेंट कमिटी ऑन साइबर सिक्योरिटी चाहिए. नेक्स्ट इज देयर शुड बी एलिजिबल क्राइटेरियाज फॉर स्ट्रिक्ट एलिजिबल क्राइटेरियाज फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ उदय कोटक कमेटी आपको डेफिनेटली पता चाहिए. फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट कमेटी और रिकमेंडेशन ऑफ उदय कोटक कमेटी आपको पता चाहिए. So definitely what we have done in this session is we have gone from governance, we have gone to corporate governance,
we have seen the definition, we have seen the कॉन्सेप्ट ऑफ गांधी जी एंड नारायण मूर्ति, हमने वो देख लिया, हमने वैल्यूज़ देख लिए, हमने स्ट्रक्चर क्या चाहिए वो देख लिया, हमने वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट वो देख लिया, हमने इश्यूज़ देख लिए, हमने स्टेप्स देख लिए. अगर इस एंगल से आप पढ़ोगे कोई भी टॉपिक को, हमने डायग्राम देख लिया, तो एवरीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस वी हैव ट्राइड टू इनकलकेट इन दिस सेशन. टू मेक श्योर अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर एथिक्स बैच. We have covered most of the topics in similar way. We'll upload similar lectures through our series, RM series में and ethics में, and soon we'll be launching a similar series for our GS3 also. हम एक important series, एक important batch start कर रहे हैं for GS3. उसके details Telegram group पर आ रहे हैं. अगर आप Telegram group पे join करना चाहते हैं तो Target 30 UPSC आप ज्वाइन कर सकते हैं, वेयर वी आर अपलोडिंग ऑल द इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑल्सो डेली. सारे प्रोग्राम्स के डिटेल्स वहाँ मिल जाएंगे, एंड वी आर ऑल्सो अपलोडिंग ऑल द एग्जाम्पल्स देयर ऑल्सो. टारगेट 30 UPSC ज्वाइन कीजिए, हमारे ऑलमोस्ट 46,000 मेंबर्स है, तो मेक श्योर यू शेयर इट अमंग ऑल योर फ्रेंड्स. अगर आपको सेशन पसंद आया तो गिव इट अ थम्स अप. राइट इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा, लाइव चैट में लिखिए, सो दैट इट मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग मोर सच सेशंस. ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, इंटरलिंकेजेस कीजिए, दैट इज़ द क्रक्स ऑफ दिस सेशन. अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली वील हैव मोर सच सेशंस इन द फ्यूचर. अगर आप पर्सनली इफ़ यू वांट टू give certain suggestions or want certain guidance, you can message me on 8830115524, where अगर आपके कोई personal doubts है तो we'll try to clear that. Hopefully you like this lecture, and we'll share the diagrams in the Telegram group after this session, so make sure you join those Telegram group and get all the benefits. Thank you.